Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. This is the second lecture of depreciation series. In this lecture, I will explain the three methods of depreciation and also try to solve at least one example of each method to give understanding of these methods. In my first lecture, I have explained the basic concepts and definitions of the depreciation. Before continuing this lecture, you should watch the first lecture and then come to this lecture. Then you can easily understand the concept which will provide in this lecture easily. Now, move to the three methods of depreciation which are going to discuss in this lecture. First is straight line method. Second, straight line method. In short, you can say SLM, and I will also use this word SLM. This means straight line method of depreciation. And second is RBM, reducing balance method of depreciation. The other name of this method is diminishing balance method, but commonly use the name reducing balance method. So I am using this name reducing balance method, RBM. And third is revaluation method, and in short, you can say RM, revaluation method. So these are three methods which are going to discuss in this lecture. And now move to the first method, straight line method. What is straight line method of depreciation? Uh, I'm uh, I'm going to explain first definition and concept of straight line method, and then I will do the simple example related to this method to give understanding of the method. Uh, the definition of straight line method: in this method, depreciation is calculated on the cost of non-current assets. I am going to repeat the word. The depreciation is calculated on the cost of non-current assets. Means जो उसकी original cost है उस पे आप depreciation calculate करेंगे, और वो cost कैसे calculate होती है वो मैंने आपको in previous lecture I have explained in detail what is the cost of non-current assets. And in this method, the value of asset reduced uniformly over each year. मीन्स कि आप हर ईयर सेम डेप्रीसिएशन चार्ज होगी, क्योंकि कॉस्ट तो वेरी नहीं करेगी, तो हर ईयर हम उस पर सेम डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे. ठीक है, सेम डेप्रीसिएशन इज चार्ज ईच ईयर. तो ईच ईयर उसकी यूनिफॉर्म रिडक्शन होगी. मीन्स कि अगर हमने फर्स्ट ईयर में उसकी 10,000 डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किया, तो एवरी ईयर विल चार्ज 10,000 डेप्रीसिएशन, एंड द कॉस्ट ऑफ एसेट विल रिड्यूस विद दैट अमाउंट ईच ईयर. क्योंकि जितनी हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं उसी से उसकी कॉस्ट रिड्यूस होती है. There are two ways of calculating depreciation in straight line method. There are two ways of calculating depreciation in SLM और straight line method. First is formula. यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने कोई एक मेथड यूज करना होगा और उसी की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड होगी. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज फार्मूला. फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ. एनुअल डेप्रीसिएशन यानी साल की, अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन फॉर अ ईयर, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे. कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू. जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू है वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू जो होती है उसकी यूजफुल लाइफ के बाद जो उसकी वैल्यू बच जाती है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है, जिसपे वो रीसेल हो जाएगा. इन डिटेल आई हैव डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर, तो आप उसको लाजमी कंसल्ट कर लीजिएगा. कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ. यूजफुल लाइफ यानी जितने ईयर्स के लिए वो बिजनेस के लिए यूजफुल है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगी. इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन विद परसेंटेज मेथड, यानी द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज के इतने परसेंट जनाब आपने एनुअल डेप्रीसिएशन आपने लेनी है उस पर, तो हम क्या करेंगे, एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज इनटू कॉस्ट ऑफ एसेट कर देंगे, तो वो हमारे पास उसकी आ जाएगी डेप्रीसिएशन अमाउंट आ जाएगी जो एक साल की उसकी होगी. यानी इन दोनों चीज़ों से हम एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फिर बता रहा हूं कि आप कोई एक वे यूज करेंगे और वही इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोवाइडेड होगी. तो नाउ मूव टू एन एग्जांपल to understand the calculation of depreciation under the straight line method of depreciation. But before doing the example, I am going to explain the information to calculate depreciation by using the formula. कि आपको formula use करने के लिए कौन सी information required होगी.
तो आपको इसके लिए चाहिए होगी टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन बाय यूजिंग द फार्मूला। आपको एक तो कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 आइटम यूज होते हैं, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होंगी, कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, और उसके बाद यूजफुल लाइफ। तो ये 3 इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होंगी तो आप एनुअल डेप्रीसिएशन का फार्मूला यूज करके आप एनुअल डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं। और ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं, अगर क्वेश्चन में ये कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दी हुई है तो दिस मींस आपने ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड होगा कि जनाब आपने डेप्रीसिएशन बाय यूजिंग द फार्मूला करनी है, ये जो एनुअल डेप्रीसिएशन वाला फार्मूला है इससे। फॉर परसेंटेज, और जब परसेंटेज की फॉर्म होगी तो उसमें आपके पास सिर्फ कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट प्रोवाइडेड होगी और परसेंटेज ऑफ एनुअल डेप्रीसिएशन उसने बताई होगी कि एनुअल डेप्रीसिएशन की क्या परसेंटेज है, लाइक 10%, 20%, 30%, ये होगा फार्मूले के लिए। अगर उसने फार्मूला आपसे यूज करवाना है तो ये दीज 3 इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, और अगर आपसे परसेंटेज करवानी है तो ओनली कॉस्ट एंड परसेंटेज ये आपको प्रोवाइड करना जरूरी है, और इसी से फिर आपकी एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। Now, move to the example. Company A purchases machine for $10,000 with an estimated scrap value of 20,000. यानी सॉरी 10,000 नहीं 100,000, मीन्स के मशीन की जो परचेज कॉस्ट है वो 100,000 है और उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 एंड एड यूजफुल लाइफ 5 ईयर। कैलकुलेट डेप्रीसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ फॉर ईच ऑफ 5 ईयर्स। यानी 5 ईयर्स में से हर साल के लिए आपने कैलकुलेट करनी है डेप्रीसिएशन, और इसमें मैंने 2 ऑप्शंस चूज की हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि अगर फार्मूला यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे और अगर परसेंटेज होगी तो परसेंटेज को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले फार्मूला को देखते हैं कि फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। तो वो फार्मूला यही है, एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो हम फर्स्ट वैल्यूज पुट करते हैं और वहां से एनुअल डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो एनुअल डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगी, कॉस्ट 100,000 है माइनस स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, ओवर लाइफ 5 ईयर है। तो हम डिवाइड जब इसको करेंगे 100,000 माइनस 20,000 किया तो पीछे आंसर आ गया 80,000, डिवाइडेड बाय 5 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 16,000। तो एनुअल डेप्रीसिएशन इज 16,000। सो ईच ईयर 16,000 विल रिकॉर्ड एज डेप्रीसिएशन। मतलब आपको मैंने कहा था सेम डेप्रीसिएशन विल चार्ज ऑन एसेट ईच ईयर, यानी 5 ईयर्स उसकी लाइफ है तो हम 5 ईयर्स तक 16,000 उसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाएंगे। Means in year 1 we will charge the depreciation of 16,000, in year 2 we will charge the depreciation of 16,000, in year 4 we will charge the depreciation of 16,000, and in year 5 we will also charge the depreciation of 16,000. Means each year same depreciation will be charged on ऑन दैट नॉन करंट एसेट। और चार्ज का मतलब भी मैं आपको समझा दूं इन डिटेल, आपको इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा कि ये चार्ज के मीनिंग क्या होते हैं। मींस कि आपने इसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना होता है। आई हैव डिस्कस्ड स्लाइट दूसरा हाफ इंफॉर्मेशन इन फर्स्ट लेक्चर एंड रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो ये 16,000 जो होगी ये ईच ईयर हमारी डेप्रीसिएशन जो होगी ये एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी हमारी इनकम स्टेटमेंट में। अगर ये हमारे पास फार्मूला की इंफॉर्मेशन ना होती और हमें वो परसेंटेज कहता तो देन हम कैसे उसको कैलकुलेट करते। तो इन केस ऑफ परसेंटेज मैंने सपोज किया था 10%, तो हम करेंगे 10% इंटू 100,000 उसकी कॉस्ट थी, उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो डेप्रीसिएशन आ गई दैट इज इक्वल टू 10,000। यानी 100,000 का अगर आप 10% ले तो 10,000 आ जाएगी। तो ईच ईयर हम सेम अप्लाई करेंगे कॉस्ट इंटू परसेंटेज। तो ये ईयर 1 की डेप्रीसिएशन आ गई, ईयर 2 में भी जब हम अप्लाई करेंगे कॉस्ट इंटू परसेंटेज, तो कॉस्ट हमारी 100,000 है, परसेंटेज 10 है, तो वही 10,000 ईच ईयर हमारी डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होती जाएगी। ईयर 3 में भी कॉस्ट इंटू परसेंटेज, तो 10% इंटू 100,000 जो हमने किया तो वो हमारे पास सेम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होती गई। ईयर 3, 4, 5 उसकी होल लाइफ तक हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है जितनी लाइफ उसने बताई हुई है 5 ईयर्स तक। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन एंड क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड कि आप या तो फार्मूला, और ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको कोई इधर वे यूज करना होगा, इधर यूजिंग अ फार्मूला और परसेंटेज। जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होगी उसमें आपने डिसाइड करना है कि इस पे फार्मूला अप्लाई हो सकता है या परसेंटेज।
तो जो अप्लाई होगा वो आप अप्लाई कर देंगे और ईच ईयर सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अब आ जाएं, मूव टू द reducing balance method, RBM or diminishing balance method. First, I am going to explain the definition of reducing balance method. In this method, depreciation will be calculated या is calculated on net book value of non-current asset. And net book value को in short NBV कहते हैं। Net book value of non-current assets पे depreciation calculate होती है। तो what is net book value? This is also discussed in lecture 1. नेट बुक वैल्यू बेसिकली दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रीसिएशन, या इसको यूँ कह लें कि नेट बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल डेप्रीसिएशन। प्रीवियसली जितनी भी आपने चार्ज किया उसे उसकी कॉस्ट ऑफ एसेट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। मींस इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द थर्ड ईयर डेप्रीसिएशन बाय यूजिंग द आरबीएम, तो फर्स्ट 2 ईयर्स की डेप्रीसिएशन का टोटल अगर आप कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू आएगी और फिर आप उस पे थर्ड ईयर की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें यह होता है कि जो जिस ईयर की आप कर रहे हो उससे प्रीवियस ईयर्स की जो डेप्रीसिएशन है उनका टोटल कर लो और उसे सब्ट्रैक्ट कर दो कॉस्ट में से, और फिर आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी उस एसेट की। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। और इसका जो फार्मूला फॉर्म में अगर हम इसको लिखें नेट बुक वैल्यू को, तो एनबीवी इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन। जितनी भी प्रीवियस होगी या 1 2 3 4 5 ईयर्स जितने की भी हो गई है वो टोटल करके उसे कॉस्ट में से माइनस कर दें तो आपके पास उस ईयर के लिए नेट बुक वैल्यू आ जाएगी और उससे हम परसेंटेज अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ आरबीएम में जो है वो परसेंटेज ही यूज होती है, डेप्रीसिएशन चार्ज विल, और इसमें परसेंटेज यानी इनटू नेट बुक वैल्यू कर देंगे और इसमें डेप्रीसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। जो भी आपका डेप्रीसिएशन चार्ज है, जैसे एसएलएम में तो ईच ईयर सेम था, ठीक है, जैसे 10,000 10,000 10,000 या 16,000 16,000 16,000, बट इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा उसकी लाइफ में। फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम होगा और उसके बाद रिड्यूस होता जाएगा। नाउ मूव टू द एग्जांपल एंड आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल। Company A purchases machine for 100,000 with an estimated scrap value of 10,000 and a useful life of 5 years. ठीक है, these informations are relevant to the straight line method, scrap value and useful life. In this case, आरबीएम के लिए ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए, सिर्फ आपको लाइफ का पता होना चाहिए और उसकी कॉस्ट। कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन at 20% per annum using the reducing balance method for each of 5 years. तो अब हम इसमें ये करेंगे, देखें इन फर्स्ट ईयर क्योंकि प्रीवियसली कोई डेप्रीसिएशन उस पर नहीं चार्ज की, करंट ईयर में हमने इसको बाय किया, तो इन फर्स्ट ईयर वी विल कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑन कॉस्ट। फिर बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में क्योंकि प्रीवियसली हमने उस पर कोई डेप्रीसिएशन नहीं कैलकुलेट की होती तो इसलिए हम उसकी नेट बुक वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एनबीवी के लिए हमें प्रीवियस ईयर्स की डेप्रीसिएशन चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है इन दिस केस। तो हम उसकी कॉस्ट पे फर्स्ट ईयर में डेप्रीसिएशन ले लेंगे और कॉस्ट इनटू परसेंटेज कर देंगे। ईयर 1 डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगी 20% यानी परसेंटेज इनटू कॉस्ट, 20% इनटू 100,000 एंड विच इज इक्वल टू 20,000। But for year 2, we will first calculate the net book value of the asset, cost minus previous year depreciations. तो कॉस्ट जो है उसकी 100,000 थी, प्रीवियस ईयर जो डेप्रीसिएशन अभी तक हुई है वो 20,000 जो हमने ईयर 1 में की, तो नेट बुक वैल्यू आ गई 80,000 एंड वी विल कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑन 80,000। ठीक है, 20% ऑफ 80,000 विच इज इक्वल टू 16,000। तो ये हमारी ईयर 2 की डेप्रीसिएशन आ गई इस एसेट पे। फॉर ईयर 3 अगेन फर्स्ट वी कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू, कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रीसिएशन, तो टोटल हो चुकी हैं 100,000 एंड कॉस्ट हो गई, और 20,000 ईयर 1 में डेप्रीसिएशन हुई, 16,000 ईयर 2 में डेप्रीसिएशन हुई, ये हमने कैलकुलेट की थी ईयर 2 में। तो टोटल हो गई डेप्रीसिएशन 36,000, उसे हमने 100,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 64,000 विच इज नेट बुक वैल्यू। एंड ईयर 3 वी विल कैलकुलेट द डेप्रीसिएशन ऑन दिस नेट बुक वैल्यू। तो वो नेट बुक वैल्यू आपकी 64,000 है, उसका 20% लेंगे तो 12,800 आ गई हमारी ईयर 3 की डेप्रीसिएशन। एंड इन ईयर 4 सेम प्रोसेस विल फॉलो, फर्स्ट वी कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू,
नेट बुक वैल्यू वही कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस प्रोविजन फॉर टोटल डेप्रिसिएशन। तो 100,000 कॉस्ट थी और प्रीवियस जितनी भी डेप्रिसिएशन हो गई हैं वो 20,000, 16,000 एंड 1 to 8,000, वो हमने सबका टोटल करके उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 51,200 और उस पे हमने 20% लेंगे तो हमारे वो 10,240 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी हमारे पास, 20% ऑफ 51,200 का। और सेम प्रोसेस विल फॉलो इन ईयर 5। फर्स्ट वी कैलकुलेट द नेट बुक वैल्यू 100,000 माइनस 4 ईयर्स, 5 ईयर में है तो 4 ईयर प्रीवियस डेप्रिसिएशन होगी, या उन सब का टोटल करेंगे, टोटल करके उसे 100,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी 40,960। और फिर जो 40,960 आएगी तो फिर उस पर 20% हम लेंगे तो वो हमारी 5th ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो आई थिंक यू विल इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आरबीएम में यही होता है कि पहले आप नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन फ्रॉम द कॉस्ट, और फिर करंट ईयर में उस पर परसेंटेज अप्लाई करके डेप्रिसिएशन लेते हैं। नाउ I am taking an other example to compare the straight line method and the RBM reducing balance method of depreciation. In this example, I am taking a purchase of van cost $5,000. The company estimated that will have a scrap value of 1,000 after 5 years. Means uski life 5 years है, 1,000 उसकी scrap value है. Calculate the depreciation of each year of life. स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए हमें जो परसेंटेज उसने कही है वो 40% है। तो फर्स्ट वी आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, क्योंकि परसेंटेज तो दी नहीं है एसएलएम के लिए भी। तो हम कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू किया तो 5,000 माइनस 1,000 किया, 4,000 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 800 आ गई हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन, सेम फार्मूला यूजिंग। और फिर हम क्या करेंगे, आपको पता है इन एसएलएम सेम डेप्रिसिएशन ईच ईयर चार्ज होगी। ईयर 1 में डेप्रिसिएशन जो होगी वो 800, ईयर 2 में डेप्रिसिएशन 800, ईयर 3, 4, 5 जितनी भी उसकी लाइफ है, 5 इयर्स तक लाइफ है तो 5 इयर्स तक 800 डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। बट नो आरबीएम में चेंज होगा। आरबीएम में क्या होगा, हम ईच ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम यूज करते हैं नेट बुक वैल्यू। बट फर्स्ट ईयर में हम कॉस्ट यूज करते हैं, मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई होती, तो इसलिए हम नेट बुक वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते फर्स्ट ईयर में, क्योंकि नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन। तो ईयर 1 में तो प्रीवियस डेप्रिसिएशन कोई नहीं होगी ना, क्योंकि वो तो न्यू एसेट है। तो फिर हम कॉस्ट पे ही डायरेक्टली परसेंटेज 40% लेंगे, 2,000 आ जाएगी। इन ईयर 2 हमारे पास जो है वो कॉस्ट है 5,000 माइनस 2,000, ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हो गई है तो वो सब्ट्रैक्ट करके हम नेट बुक वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ गई 3,000 और उस पर हम 40% लेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 1,200। ईयर 3 में 2 साल ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो गया है वो एसेट, तो हम कॉस्ट में से प्रीवियस 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। वो बनती है, फर्स्ट ईयर में थी उस पर 2,000 और सेकंड ईयर में थी 1,200, तो वो टोटल बन गया 3,200। वो हमने 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन का सम उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 1,800 और 1,800 पे हमने 40% लिया तो वो 720 बन गया। इसी तरह ईयर 3 के बाद जब हम ईयर 4 में जाएंगे तो हम फर्स्ट नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें प्रीवियस 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 3 ईयर्स की डेप्रिसिएशन जो है वो 2,000 प्लस 1,200 प्लस 720 ये तीनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3,920, और वो 5,000 में से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेट बुक वैल्यू का 1,080। तो 1,080 पे जब हम परसेंटेज 40% अप्लाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी 432। और सिमिलरली हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे इन द ईयर 5। फर्स्ट वी कैलकुलेट नेट बुक वैल्यू 5,000 माइनस प्रीवियस 4 इयर्स डेप्रिसिएशन सम, वो हम सम कर देंगे उसमें से सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 6,480 और उस पर 40% लेंगे तो 259। अगर आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो ये 4,352 कैसे आया। ईयर 1 डेप्रिसिएशन 2,000, ईयर 2 डेप्रिसिएशन 1,200, ईयर 3 डेप्रिसिएशन 720 एंड ईयर 4 डेप्रिसिएशन 432।
तो 4 ईयर्स की डेप्रिसिएशन का टोटल करके आपने 5th ईयर के स्टार्ट में कॉस्ट में से माइनस कर दिया तो नेट बुक वैल्यू आ गई और उस पर 40% हमने अप्लाई किया तो 259। हमें होल नंबर्स में आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है, इसीलिए हम डेसिमल में नहीं लिखते, उसको हम राउंड कर लेते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी। देखें एसएलएम में सेम डेप्रिसिएशन 5 ईयर्स में, आरबीएम में फर्स्ट ईयर में 2000, सेकंड ईयर में 1200, थर्ड ईयर में 720, फोर ईयर में 432 एंड ईयर 5 में 259। तो ये देखें ग्रेजुअली ये डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही है। तो ये आरबीएम मेथड है, इसलिए ये आरबीएम मेथड में मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाएगी। तो मींस के एसएलएम में हर साल 800 की डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगी, बट आरबीएम में हर साल डिफरेंट होगी। फर्स्ट ईयर में 2000, सेकंड में 1200, थर्ड ईयर में 724, फोर्थ ईयर में 432 और ईयर 5 में 259 डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। नाउ कम टू द थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं एसेट्स की को हर ईयर के एंड पे वैल्यू करते हैं दोबारा से। द एसेट इज वैल्यूड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल पीरियड या ईच फाइनेंशियल ईयर एंड दिस रिवैल्यूड अमाउंट इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू एट इन द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यानी जो बिगनिंग ऑफ द ईयर में जो वैल्यू थी आप उसके साथ आप कंपेयर करते हो। पीरियड मतलब ईयर होता है। तो जो ईयर एंड पे हम एसेट्स की वैल्यू करते हैं उसकी वैल्यू को ईयर की स्टार्ट की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और एनी रिडक्शन जो भी उसमें डिक्रीज होएगा उसे हम डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एसेट था, उसकी ईयर के स्टार्ट पे वैल्यू थी 5000 और ईयर एंड पे जब हमने उसकी वैल्यू चेक की तो वो थी 4500 की। तो 5000 और 4500 के दरमियान जो डिफरेंस है दैट विल बी रिकॉर्डेड एज डेप्रीसिएशन। ये मैं अभी आपको एक एग्जांपल लूंगा, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मींस के ईयर के स्टार्ट पे और ईयर के एंड पे जो एसेट्स की वैल्यू होती है उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। अब इसमें यह होता है कि एसेट को हम ईयर के एंड पे उसकी मार्केट वैल्यू चेक करते हैं कि वो कितने का इस वक्त सेल हो जाएगा। तो जो हमें वो वैल्यू पता चलती है उसे हम ईयर के स्टार्ट पे जो वैल्यू होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं और वो डिफरेंस हमारा डेप्रीसिएशन होती है। और डेप्रीसिएशन इसके लिए जो हम फार्मूला बना सकते हैं तो वो फार्मूला बहुत इजी है, क्वाइट इजी फार्मूला। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर प्लस एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर। हमने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई एसेट खरीदा तो हम उसमें ऐड कर देंगे उसकी वैल्यू, माइनस डिस्पोज ड्यूरिंग द ईयर, अगर कोई हमने डिस्पोज किया वो माइनस कर देंगे, और फिर माइनस वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ ईयर। तो जो एंड ऑफ ईयर की वैल्यू है वो लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट होगी और ये जो इनका डिफरेंस आएगा वो डेप्रीसिएशन। वैल्यू ऑफ एसेट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर, न्यू एडिशन उसमें ऐड कर देंगे, डिस्पोजल अगर कोई हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया माइनस कर देंगे, और ईयर एंड की जो वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रीसिएशन होगी। दोबारा देख लें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एसेट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, कोई नया खरीदा है, माइनस न्यू बॉट यानी एनी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर माइनस डिस्पोज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड माइनस वैल्यू ऑफ एसेट एट द एंड ऑफ ईयर, जो हमने द वैल्यू वी हैव एस्टिमेटेड और वी हैव चेक एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमने उस एसेट की वैल्यू चेक किया तो वो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ईयर एंड वैल्यू को, तो जो डिफरेंस आएगा वो डेप्रीसिएशन होगी। नाउ मूव टू द एग्जांपल रेलेवेंट टू द रिवैल्यूएशन मेथड। A company owns loose tools of costing 132,000 at the beginning of year, and during the financial year the additional tools are bought 48,000. The value of loose tools at the end of year 164,000. तो नाउ हम इस पे रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई करते हैं तो एनुअल डेप्रीसिएशन या डेप्रीसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वो कॉस्ट ऑफ यानी ईयर के स्टार्ट पे जो था वो 132,000 था। अभी मैं फार्मूला राइट कर रहा हूं तो इसके बाद मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। एट द स्टार्ट ऑफ ईयर इट विल बी इट वाज 132,000 एंड ड्यूरिंग द ईयर एडिशन वाज 48,000, तो 132,000 प्लस एडिशन 48,000 माइनस एट द एंड ऑफ ईयर वैल्यू 164,000। तो 132,000 plus 48,000 minus 164,000, the answer is $16,000 और ये इसकी एनुअल डेप्रीसिएशन होगी।
और ये आपका रिवैल्यूएशन मेथड है, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू प्लस एडिशन माइनस ईयर एंड वैल्यू करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसमें डिस्पोजल नहीं है तो हम डिस्पोजल को माइनस नहीं करेंगे, तो ओपनिंग वैल्यू प्लस एडिशन माइनस एंड ऑफ ईयर वैल्यू जो है वो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई। तो दिस इज द एग्जांपल related to revaluation method. I hope you understand these three methods. First, straight line method, second RBM reducing balance method, and third RM revaluation method. These are the basic examples of these three methods. Now, for double entry record of depreciation जो है, अगर आप उसको भी लर्न करना चाहते हो तो उसके लिए इसका पार्ट 3 में दूसरा अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको चेक कर लें। वहाँ पे मैं इसकी इन मेथड से जो डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं उनको हम अपनी डबल एंट्री रिकॉर्ड में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, उनके लेजर अकाउंट्स क्या होंगे, फिर वो इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ ट्रीट होंगी। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आई विल अपलोड इन द माय लेक्चर पार्ट दूसरा इन थर्ड लेक्चर ऑफ डेप्रीसिएशन पार्ट 3। तो उसमें मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पे चेक कर लें। तो अभी तक के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आई विल प्रोवाइड माय वेबसाइट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई विल आल्सो गिव द लिंक ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 1 ऑफ डेप्रीसिएशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप वहां से उनको अगर आपने देखना है और उनको उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है तो आप वो लाजमी वहाँ से आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से उन्हें देख लें। तो तब तक के लिए आप टिल नेक्स्ट लेक्चर मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।